اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے مزید اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر نے پی ٹی آئی کے 11 مزید اراکین کے استعفے منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے آج یا کل پی ٹی آئی اراکین کے استعفے منظور کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر نے مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کے استعفے بھی منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے تھے۔ پی ٹی آئی نے اراکین قومی اسمبلی کے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے دائر کی ہے۔ شاہ خالد اس متعلق ہمیں آگاہ کریں گے۔ کہیے شاہ خالد۔ دیکھیں، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے حوالے سے پی ٹی آئی نے مرحلہ وار استعفے منظور کرنے کے حوالے سے عدالت میں چیلنج کر دی ہے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی کے اقدام کے خلاف باضابطہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ اسد عمر نے بطور درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ میں باضابطہ درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست اس وقت دائر کر دی گئی ہے، اس پر ابھی نمبر الرٹ ہونا باقی ہے، اس کے بعد باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کی جائے گی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آج اس پر سماعت جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، جب سماعت کے لیے فکس ہوگی تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کل اس پر باقاعدہ سماعت ہوگی۔ جی شاہ خالد، شکریہ آپ کا۔ 11 اپریل کو قومی اسمبلی کے 125 ارکان نے کھڑے ہو کر باضابطہ طور پر استعفے دینے کا اعلان کیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے استعفے کی منظوری کا عمل پورا کیا تھا۔ اسپیکر کو استعفے روکنے کا کوئی اختیار نہیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا الیکشن کمیشن نے مرضی کے 11 استعفے منظور کر کے غیر قانونی کام کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کس قانون کے تحت اختیار تھا کہ استعفے منظور نہ کرے۔ 11 اپریل کو قومی اسمبلی کے اندر ہم لوگ گئے، اس دن شاید 125 لوگ ہم وہاں پہ تھے ہال کے اندر۔ شاہ محمود قریشی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا جی کہ ہم سب مستعفی ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام دوست جو ہیں جو مستعفی ہونا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ 13 تاریخ کو اس وقت کے ایکٹنگ اسپیکر قاسم سوری صاحب نے پروسیس کمپلیٹ کر کے گزٹ نوٹیفیکیشن کرا دی اسپیکر سیکریٹریٹ سے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے استعفے جو ہیں منظور کر لیے گئے۔ قانون کے اندر ویسے ہی اسپیکر کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ روک لے اس کو۔ الیکشن کمیشن کے پاس کون سا قانون کے اندر اختیار تھا کہ وہ یہ استعفوں کو منظور نہ کرے؟ اور الیکشن کمیشن پہ میں آتا ہوں، ان کے اوپر تو باقاعدہ طور پہ ایک ریفرنس فائل کیا جا رہا ہے، ایک بہت طویل فہرست بن چکی ہے کہ غیر قانونی یہ فیصلے جو کرتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک فریق بن چکا ہے، ایک سیاسی فریق بن چکا ہے۔ میڈیا پہ نوجوانوں، آپ نے تجویز کرنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے، اس کے لیے سب سے مناسب الیکشن کا سمبل کیا ہوگا، وہ کیا نشان ہے جس سے یہ پی ڈی ایم کا حصہ بن سکیں اور یہ الیکشن لڑ سکیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں 24 گھنٹے میں بارش اور سیلاب سے مزید 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پی ڈی ایم میں کہتی ہے مجموعی اموات کی 136 ہو چکی ہیں۔ ہلاکتیں کوہلو، کیچ، مستونگ، ہارنائی، قلعہ سیف اللہ اور سبی سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ مانسون کی جاری بارشیں بلوچستان میں زراعت کے لیے بھی نقصان کا باعث بن گئی۔ مسلسل برساتی صورتحال میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے جنوبی علاقے کمرانی، کھیرانی اور کچی بیگ میں واقع انگور کے باغات بری طرح متاثر ہو گئے ہیں اور انگور کی تیار فصل تباہ ہو گئی۔ سال 12 مہینے کی خواری محنت ضائع ہو گیا بھائی۔ ابھی انگور جو تیار ہو گیا، بارش سٹارٹ ہو گیا جولائی کے مہینے میں، سارا مہینہ پورا مہینہ چل گیا۔ باغات مالکان کا کہنا ہے کہ زندگی میں پہلی بار انہیں بڑے پیمانے پر نقصانات کا سامنا ہے۔ ہر سال پہ 25 سے 30 لاکھ بنا لیتے تھے، لیکن اس سال 5 لاکھ بھی وہ مشکل سے بنا رہے۔ کم از کم یہ 40 سے 50 لاکھ کا باغ تھا، ابھی 10 لاکھ بھی نہیں کرے گا۔ تیار فصل خراب ہونے کے باعث نہ صرف مالکان بلکہ فصلیں خریدنے والے ٹھیکیداروں کو بھی لاکھوں روپے کے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تقریباً یہ باغ جو ہے ہم لوگوں نے 30 لاکھ تک خریدا ہے اور 5 لاکھ خرچہ کیا، ابھی تک 2 لاکھ بھی نہیں بنا ہے۔ کوئٹہ کے علاوہ پشین میں بھی بارشوں کے باعث کروڑوں روپے کا انگور ضائع ہو گیا، جبکہ زیارت، خان میں ترزئی، خانوزئی اور دیگر شمالی علاقوں میں سیب کے بڑے باغات سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ جو سیب کے باغات ہیں، انار کے باغوں کو بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ اس میں گاجا سیب ہے، یہ جو ہے جلدی
पक जाता है, इसको काफ़ी नुकसान हो जाता है। इन बागात में काम करने वाले मजदूर भी इस सूरत-ए-हाल में मुतासिर होकर रह गए। मुतासरा बागात के मालिकान की साल भर की मेहनत ज़ाया और आमदन की उम्मीद टूट गई है। उनकी नजरें अब हुकूमती इमदाद की तरफ है। कैमरामैन शेर लोधी के साथ अजीजुर रहमान काकड़, ARY न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश के बाद सैलाब ने तबाही मचा रखी है। 137 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुतासरीन को खाने पीने की चीज़ों के अलावा पीने के साफ पानी की कमी का भी सामना है। इस बारे में मजीद बताएंगे अब्दुल्ला मक्सी। जी, बारिश और सैलाब ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी है। बलूचिस्तान के अक्सर इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। इन बारिशों से और सैलाब से 137 अफराद जाबाक हो चुके हैं, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 13,000 से ज़ायद जो घर हैं वो मुनहदम हुए हैं। बाज़ घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। 23,000 से ज़ायद जो माल मवेशियाँ थे लोगों के बह गए। जो सैलाब मुतासरीन काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। उनके पास न खेमे हैं, न अशिया खुराक है और ना पीने का साफ़ पानी है। इस टाइम भी जो राब्ता सड़कें हैं अक्सर इलाकों से टूट गए हैं और अक्सर इलाकों के जो पुल हैं वो टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से जो रिलीफ ऑपरेशन में भी काफ़ी ज़िला इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। NDMA और PDMA ने सैलाब मुतासरीन इलाकों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुज़वी या मुकम्मल तबाह मकानों का मुआवजा 5 लाख रुपए कर दिया। कहते हैं चैलेंज बड़ा है, मिलकर मुकाबला करेंगे। बहाली और इमदाद के लिए NHA की कोशिशें लायक़ तहसीन हैं। मेडिकल कैंपों का जाल बिछाया जाए। गैर मामूली बारिशों से वसी पैमाने पर नुकसान हुए। कीमती इंसानी जानों के नुकसान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। मुजफ्फरगढ़ की जिला इंतजामिया ने दरियाए चनाब के 104 देहात में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया है। नशेबी इलाकों में घर और बागात डूब गए हैं। हेड मोहम्मद वाला पर रेस्क्यू टीमों का नशेबी इलाकों में ऑपरेशन जारी है। तफसील जानते हैं नवीद फरियाद डोगर से। दरिया चनाब में पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर जो ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से 104 मवाज़ियात की वार्निंग जारी की थी। जो नशेबी इलाकों में मौजूद है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और जितने भी नशेबी इलाके हैं रेस्क्यू एहलकार जो है वो उन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं। लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है क्योंकि जो पानी की फ़्लो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन ये मज़ीद बढ़ेगा और पानी में मज़ीद इजाफा होगा। जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं जो मुल्तान से आई हुई हैं वो हेड मोहम्मद वाला पे रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने जारी रखा हुआ है। इन तमाम मवाज़ियात में से जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। उनके जानवरों को, लोगों को उनको रेस्क्यू करने का सिलसिला जो है वो जारी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से यही पैगाम दिए जा रहे हैं कि जहाँ भी खतरात लाक हैं लोग अपने घरों में मत बैठें और इनके साथ तावन करें और जो है ताकि इनको रेस्क्यू करने में मदद मिले। जी, दादू की तहसील काछू में हालिया बारिशों और नए गाज नदी के सैलाबी रेले से राब्ता सड़कें 9 रोज बाद भी बहाल न हो सकीं। सैलाब में घिरे मुतासरीन अपनी मदद के तहत नकले मकानी कर रहे हैं। इनके पास कुछ खाने को है ना पीने को। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। मजीद जान लेते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे वली मोहम्मद बलोच से। जी वली मोहम्मद। यहाँ पर हालिया बारिशों के बाद जो है सैलाबी रेले पानी आने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ जो है इलाकों में देहात जो है उनका राब्ता सड़कें दादू जो ही इनसे मुनक़ता हो गया है। यहाँ पर जो है कई लोग जो हैं वो मसूर हैं। वहाँ पर गैस्ट्रो डायरिया इसकी वबा भी फूट पड़ी है जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर कोई भी हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन कोई भी इमदादी सामान उन तक नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से वहाँ पे इलाके जो है रहने वाले सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पर मेडिकल टीम भेजे, इमदादी राशन भेजे ताकि लोगों को सहूलियात मैसर हो सकें। जी, खबर है कंदकोट से जहां पर रोजगढ़ के मकाम पर 4 बच्चे तालाब में डूब गए हैं। इलाका मकीनों ने 3 बच्चियों की लाशें निकाल ली हैं। अली हसन मलिक हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे। कहिए अली। जी, ये कंदकोट का गांव है जोरगढ़। वहाँ पानी का तालाब जो बरसाती पानी था वो खड़ा था। 4 बच्चे जो अपने घरों से निकलकर खेल कूद के लिए आ रहे थे ये पाँव फिसल के बायस तालाब में गिर गए। 4 बच्चे मौके पे जा पाके, इनमें 2 बच्चे हैं और 2 अपना चाचा दादा बहन भाई हैं। 4 बच्चे एक ही घर के हैं। 4 बच्चों की लाश निकालकर सिविल अस्पताल कंदकोट पहुंचा दी गई है, मगर इस वक्त जिले इंतजामिया की जानिब से कोई ताउन नहीं किया जा रहा। कोई इस वक्त डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं ताकि उन बच्चों का पोस्टमार्टम किया जा सके। बच्चों के घरों में अभी तक का कोहरा मचा हुआ है। 4 बच्चों की लाशें देखकर उनकी माएँ बेहोश हो गई हैं। शहरी बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं इनकी मदद के लिए। ताल इंतजामिया जो है अभी तक नहीं पहुंच सकी है। जी अली, शुक्रिया आपका।
करप्शन, बददियानती और नाअहली ने कराची में बारान रहमत को शहरियों के लिए जहमत बना दिया। बारिश क्या हुई, शहर का हाल ही बुरा हो गया। शहर की अहम शाहराहों समेत अंदरून इलाका भी सूरत हाल वहाँ पर बुरी तरह ख़राब है। देखते हैं इसी बारे में चांद नवाब की रिपोर्ट। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोल सिर्फ 3 रुपए 5 पैसे सस्ता, आवाम ने फैसले को धोखा करार दे दिया। शहरियों का कहना है इंपोर्टेड हुकूमत आवाम पर कुछ तो रहम करे, कम से कम 50 रुपए कम करते तो रिलीफ भी मिलता। इस हुकूमत ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। डीजल की कीमत में 9 रुपए का इजाफा हुकूमत की नाकामी का सबूत है। सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से मईशत तबाह हो रही है। हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाकर आम इंतखाबात का ऐलान करे। इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को बांध के रख दिया है और डीजल की कीमत जो है उसमें 9 रुपया का इजाफा किया है। असल तो इशू ये है कि उससे किसान की तो पहले ही कमर टूटी हुई है। उसके पास जो इस वक्त डीजल की कीमतें हैं उसमें तो फिजिबल ही नहीं रह गया कि आप इलेक्शन की तरफ आए और इलेक्शन का ऐलान करें और उसके बाद फिर तय करें कि किस फ्रेमवर्क के तहत इलेक्शन होने। और दूसरा, हम इलेक्शन कमीशन हम यहाँ चाहते हैं। अगर ये इलेक्शन कमीशन नहीं जाता तो फिर ज़ाहिर है हमें रास्ते काम करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, लिखा फजलुर रहमान के धमकी आमेज बयान मजीद इंतशार पैदा करेंगे। चॉकलेट बेचने वालों को बताना चाहता हूँ आटे और घी का कहत पड़ने वाला है। उन्होंने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए कमी और डीजल की कीमत में 9 रुपए इजाफे को कौम से मजाक के मुतरादिफ करार देते हुए लिखा, हुक्मरानों के जाती कारखाने ठीक चल रहे हैं, गरीब के घर का खाना खराब हो गया। खाम माल पर पाबंदी से बरामदात 25% कम हो गई हैं। महंगाई 38% बढ़ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होंगे तो अफरात ज़र ही नहीं मईशत का पहिया भी जाम हो जाएगा। हर माह 200 फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि उनका काम उन्हीं से कराएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक केस के दौरान वकील से मुकालमा। मेडिकल तालिबा की तालीम मुकम्मल होने के बाद दाखिला मनसूख होने के केस में रिमार्क्स दिए कि हमने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया, किसी इदारे के काम में मुदाखलत ना की, लेकिन हम इदारों की पुश्त पर खड़े थे। हमारे इस इक़दाम के नतीजे में शफ़ाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। अदालत का कहना था कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा रुखसाना बंगश ने मेडिकल साल 2 का इम्तहान 5वीं कोशिश में पास किया था। तालिबा ने बाकी साल का इम्तहान भी सप्लीमेंट्री में पास किया था। अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना आयद करना मुतल्लिका इदारों का काम था, हमारा नहीं। आप खुद सोए रहे और हमें कह रहे हैं जाग जाएं। अदालत ने खैबर यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी। अभी आपको बराह रास्त दिखाएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि बलूचिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हुकाम की जानिब से ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी उनके साथ मौजूद हैं, देखे जा सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। इमदादी सरगर्मियों से मुताल्लिक इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। और PDMA के मुताबिक जो भी बलूचिस्तान में बारिशों के बायस जो हलाकतें हुई हैं उस मुताल्लिक भी ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। और जो नुकसानात हुए हैं यहाँ पर उस मुताल्लिक भी ब्रीफ किया जा रहा है। और जो सड़कें तबाह हुई हैं, जो फसलें तबाह हुई हैं, उन सब चीज़ों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है। तो बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी उनके हमरा देखे जा सकते हैं। NDMA PDMA की तरफ से इमदादी कार्रवाइयों को इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही है। किला सैफुल्ला इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें हुई जिसके बाद सैलाब आया और उसके बाद तबाही हुई और उस पर ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। हुकाम की जानिब से इस वक्त सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं और इमदादी सरगर्मियाँ जो वहाँ पर चल रही हैं उस पर ब्रीफ किया जा रहा है। पीछे भी सर जिक्र हो गया था कि 12 हमारे जो है वो डेथ की चीज़ है, बाकी हमारे जो हाउसेज जो डैमेज जो वो सर पार्शली हमारे 1268 है और कंप्लीट 250 है। जो रेड सेक्टर है उसका हमारे 2 रोड जो है वो डैमेज हुए। ब्रिजेज हमारे 3 है सर, जिसमें एक मेन ब्रिज जो खनसोब इलाके को आता है यहाँ पे जो अभी तक कट गया टोटल एरिया का सर। हमारे सर जो कैंप्स है वो बलूचिस्तान में हमने 4 कैंप्स लगाए। चूँकि बलूचिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड एरियाज में, लेकिन कुछ हमारे जो 4 कैंप्स हम लगाए लसबेला में, यहाँ पे केच में और क्विटा में, वो इस तरह के एरियाज है कि वो इकट्ठे रहते हैं। तो हम उनके लिए कैंप सिटी बना दिया जिसपे हम आपको विजिट करवाएंगे उसके साथ। सर ये सर नेक्स्ट पे सर
ये सर हमारे कुछ जो ट्यूबवेल्स है, जो हमारे सोलर सिस्टम है, हमारे जो बागात है, हमारे जो फसलात है सर, उनकी डिटेल्स है। किस चीज़ के बागात? यहाँ पे सर मुख्तलिफ प्याज के है, चिली के है, जो एप्पल्स के है, जरदालू के, खुबानी के, ये सारे बागात ज़्यादातर सेब के बागात नुकसान जो जी सर। अच्छा सर, इस तरह के हमारे जो ट्यूबवेल सिस्टम है यहाँ पे जो है ना मेजॉरिटी जो है ना वो बिजली के जो है ना जो इशू है उस हवाले से हमारे पास सोलर सिस्टम जो है ना वो भी ज़्यादा। लाइव स्टॉक जो खिलासीफला डिस्ट्रिक्ट की वन जो है ना टोटल रोप डिवीजन उसका सारा दारोमदार जो है ना ज़्यादातर सर एग्रीकल्चर पे और मालदारी पे है सर। यहाँ पे मालदारी हमारे जो शीप्स और गोड्स और कैटल वगैरह वो भी ज़्यादा इफेक्ट हुए, लेकिन प्रॉपर सर्वे जो हम सर रेस्क्यू जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जो सर हम थर्ड फेज पे पहुँचेंगे तब हम प्रॉपर सर्वे करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तब सर हमें सही अंदाजा होगा कि कितने जो है ना वो लाइफ स्टॉक इफेक्ट हुआ है, कितने बागात हुए, कितने फसलात हुए। तमाम डिप्टी कमिश्नर जो हमारे 34 डिस्ट्रिक्ट से वो सर जब डेटा कंपाइल करेंगे वो सर हमें भिजवाएंगे, उसको कंपाइल करके पीडी में बलूचिस्तान उसको प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉर अप्रूवल भिजवाएंगे सर। इसका ये पीयू साहब कह रहे हैं कि इसमें एनडी में और पीडी में मिलके सर नो डाउट जॉइंट सर्वे उससे अच्छा होता है एनडीए में पीडी में जॉइंट सर्वे सारी चीजें बड़ा फायदा होगा सर। नो डाउट कि एनडीए ने सर सिर्फ ब्लड में नहीं अभी बिफोर इसके जो ज्यादा नुकसान जो है एग्रीकल्चर में बागात को पहुंचा। यस सर, बागात फसलात जो फसलात भी हुए सर, जिस ज़्यादा फसल कौन सी होती है यहाँ पे सर चिली होता है, टमाटोज होता है, ओनियन होता है सर, ये सारे यहाँ पे होते हैं जो कि खिलासीफला जो ड्राई एरियाज है सर, हमारी जो ड्राई बेल्ट है यहाँ पे ज़्यादातर फसलात ही होता है। बागात सर एप्पल्स के यहाँ और छोटे छोटे डैम्स उनको भी नुकसान। जी सर, डैम्स को ये सब छोटे बंदात कहते हैं जो कि जिम्मेदार अपने पानी को रोकने के लिए उसको जो रोकते हैं सर, वो बंदात ज़्यादा 10,000 के करीब इस डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे बंदा थे उनको जो नुकसान हुआ है। ये सर हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ है जो कि खिलासीफला डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने की है सर, जो जिसमें एनडीएमए भी हमारे साथ शामिल है। एनडीएमए ने सर सिर्फ यहाँ पे जो फ्लड है उसके हमें सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इससे पहले जो हमारे अर्थक्वेक था जो अरनाई हुआ तो वहाँ पे भी उन्हें फुली हमें सपोर्ट किया। जनरल साहब ने खुद विजिट किए थे यहाँ भी और खिलासीफला की भी, तो वो सर हम ऑन बोर्ड है क्लाइंट पे। और यहाँ पे सर मैं जिक्र करता चलो पाकिस्तान आर्मी को और एफसी का, जहाँ जहाँ पे सर स्पेशली हमें जो रेस्क्यू की इशूज़ हुए तो वहाँ पे एफसी बलूचिस्तान और पाक आर्मी ने हर हवाले से हमें सपोर्ट किया सर, तो स्पेशली रेस्क्यू के सिलसिले में और रिहेबिलिटेशन में और प्लस जो है रिलीफ एक्टिविटीज़ में। ये सर डिटेल्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्टी कमिश्नर, सिर्फ सर खिलासीफला नहीं, कहीं पे भी डिप्टी कमिश्नर जो हमें डिमांड करती है पीडीएमए को एज पर द रिक्वायरमेंट हम उनको नॉन फूड और फूड आइटम्स सप्लाई करते हैं। जो नॉन फूड आइटम्स है उसमें सर जो मेन चीज़ है वो टेंट है सर, उसके अलावा जो बेसिक नीड्स है जो भी एक घर को एक फैमिली को ज़रूरत पड़ती है वो हम उनको दे रहे हैं। तो ये टेंट विलेज में जो लोग हैं सारे आसपास के सर पहाड़ों से गुजरे हुए सर, ये सराउंडिंग्स के जो पहाड़ों पे भी रहते थे और पहाड़ों के दामन में भी रहते थे। तो फ्लैश फ्लड तो गुजर गया ना सर, बाकी जो प्लेन एरियाज जैसे उस दिन सर आपने विजिट किया था जामक्स और उन एरियाज को, एक नया इलाका अभी आबाद हो गया, लोगों ने आबाद कर दिया, तो अब ट्यूबवेल वगैरह इधर लगा दिया। जब फ्लड इसमें आया क्योंकि फ्लड तो पहले बहुत फैला हुआ जा रहा था, लेकिन जब लोगों ने ज़मीनात आबाद कर दी तो ये एरिया कम हो गया। ज़्यादा फ्लड जब आ गया तो उनके ट्यूबवेल, उनके सोलर, उनके माल मवेशी, उनके घरा सबको क्योंकि अपने हालत पे वो फैल गया, इस वजह से कच्चा लटबंदी किए थे, फ्लड प्रोडक्शन नहीं थे। फ्यूचर में भी कुछ चांसेस हैं अगर इधर दोबारा करेंगे? हाँ, फ्लड प्रोडक्शन बगैर नहीं हो सकता, फ्लड प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। माल मवेशी का वेट जो है वेट उसके क्या इंतजाम वो उसका सर इस तरह की अभी हम जो रिलीफ एक्टिविटीज से थोड़ा सफारी बोले नहीं इनका माल मवेशी कहाँ पे वहाँ पर कोई वैक्सीनेशन कोई यस सर, वहाँ पे सर एक तो मेडिकल कैंप से वो भी डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जो सेक्टर जो वहाँ पे हम बनाए सर, बाकी लाइफ स्टॉक के भी सर इसी तरह एज लाइक जो मेडिकल कैंप से वैक्सीनेशन कैंपों में है वो अपना लाइफ स्टॉक लेके आए सर इनके अपने बिल्कुल यहाँ पे मैं लाइफ स्टॉक में ओके सर राइट फ्रॉम 7 जुलाई सर हमने अभी तक 25 मेडिकल कैंप्स किए और यहाँ अभी तक जो है सर 11 हमारे पास डेथ हुई है और वाटर बोर्न डिजीज इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। 4,771 पेशेंट को हमने ट्रीट किया और पहले तो हम मोबाइल के थ्रू जो है वहाँ पे अप्रोच करते थे, अब जो है परमानेंट हम वहाँ पे डेली बेसिस पे मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं सर। तो अभी तक 4,700 उसमें 315 हमारे पास डायरिया के केसेस आए। इस वक्त भी सर हमारे टेंट में जो
टेम्परेचर की वजह से या वाटर बाउंड डिजीज़ की वजह से हमने क्लोरिनेशन वगैरह तो करवा दी है, मगर पेशेंट अभी भी एडमिट है। मेरे पास 3 बच्चे हैं अभी इस वक्त मेडिकल कैंप पे। एक्वाटेप हो गए जी सर, एक्वाटेप उस पर करके, यानी अगर ये मेडिकल कैंप्स ना होते तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे आउटब्रेक के सर, तो आउटब्रेक को हमने रोके रखा सर। उस आउटब्रेक को हमने इसीलिए रोका सर कि हम डेली बेसिस पे उनको ORS और रिहाइड्रेशन और मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं सर। साथ है बिल्कुल बैक साइड NIH के पास एक प्रॉपर जो है सिस्टम है जहाँ पे पूरे मुल्क में जो है आउटब्रेक ऑफ डिजीज, जहाँ कहीं भी आउटब्रेक होगी तो वो इमीडिएटली जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इंटरवीन करेंगे। सिंगल इस वक्त सर बलूचिस्तान में तमाम 16 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कलरा पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, इसके लिए हमने NIH से भी सपोर्ट मांगी है, हम खुद भी अपनी सपोर्ट दे रहे हैं और तमाम CM साहब तो सेक्रेटरी हेल्थ CS साहब तो डेली हमारे साथ है, तो हमने तमाम बलूचिस्तान में हर जगह अभी तक डेली बेस पर कैंप्स हमने स्टार्ट किए, मेडिकल कैंप। जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पानी आया वहाँ सब आपने सब जगह लगाया, बिल्कुल कैंप लगा दिए हैं, 100% लगा दिए सर। हम लोगों ने अपने जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे किए। वेटनरी के लिए वेटनरी के सर, वेटनरी के हम लोगों ने उन्होंने भी सर सिवाय 1-2 डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ हमारी अप्रोच नहीं हो रही है। 10 कैंप लगाए हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ इफेक्टेड एरिया है वहाँ हम लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, सब विजिट कर सकते हैं। तो अगर किसी जगह उतरे तो आपको होगा, आप बिल्कुल हमारे और सेक्रेटरी साहब तो डेली हर 5-6 बजे हमारी जूम की मीटिंग तमाम DCs को, तमाम DHOs को, CS साहब हमारे साथ रास्ते में क्यों उतर जाएंगे। CS साहब सर डेली हमारे CS साहब हमें हर जगह पे 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक तो डेली हमारे साथ CS साहब मीटिंग जो भी रिक्वायरमेंट होता है और ये CS साहब क्या है कि हम सारी टीम एक्टिव हो गई। सर ये वाले पॉइंट जो अगर आप काइंडली विजिट कर ले सर, जो हमारे यहाँ पे कैंप है सर, वहाँ पे बच्चे एडमिट है। कहाँ क्या बिल्कुल सामने सर, इस पे सर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में मौजूद हैं और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। किला सैफुल्ला पहुंचे, वहां का दौरा किया। NDMA PDMA की जानिब आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया गया। हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग में इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक भी आगाह किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बिज़िंजो भी दीगर हुकाम के साथ मौजूद थे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ किया जा रहा है। कोयटा में मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, सैलाब से मुतासरीन और मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों में उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की उड़ान न रोकी जा सकी। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन क्या हाल रहा, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अंजुम अब्दुल वहाब से। अंजुम अब्दुल वहाब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह कल स्टेट बैंक और वज़ारत खजाना ने एक मुश्तरका बयान जारी किया था कि उनके मुख्तलिफ इक़दामात की वजह से रुपये पर दबाव कम होगा, लेकिन ये सूरत नजर नहीं आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर अभी भी 240 के अतराफ ही चल रहा है, उसमें उतार चढ़ाव जारी है। इसमें सिर्फ 37 पैसे की कमी देखी गई थी, 239 37 पैसे कम होकर 238 50 पैसे पर था। ताहम इससे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो डॉलर चाहिए तो उस पर कोई असर नहीं हुआ है। एलसी खोलने में अभी भी इम्पोर्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनको मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा है। तो ये सूरत हाल अब काफी इम्पोर्टर्स के लिए मुश्किल होती जा रही है। बैंक डॉलर 240 241 हर बैंक अपने विंडो के ऊपर मुख्तलिफ रेट पेश कर रहा है डॉलर के और इससे इम्पोर्टर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर की इस कमी की वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। हालांकि आइंदा हफ्ते IMF का बोर्ड इजलास भी तलब कर लिया गया जो 1.2 अरब डॉलर के सिलसिले में है जो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टर काफी रुल गए हैं और डॉलर अभी भी जिस तरह हुकूमत ने दावा किया था, मिर्जा इस्माइल ने दावा किया था कि रुपये पर दबाव कम होगा, लेकिन ये दबाव कम होता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अंजुम अब्दुल वहाब। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का कहना है जुलाई में जून के मुकाबले में टैक्स वसूली में 10% इजाफा हुआ। जुलाई में 458 अरब रुपए जमा किए गए जबकि हदफ 443 अरब रुपए था। इस तरह हदफ से 15 अरब रुपए जायद टैक्स वसूल किए गए। इसी तरह रवा माली साल जुलाई में रिफंड्स 28 अरब रहे, गुज़श्ता जुलाई में ये 21 अरब रुपए थे।
वफाकी हुकूमत की नेपरा के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 57 पैसे महंगी करने की दरखास्त। नेपरा का कहना है कि मंजूरी की सूरत में कि इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ 26 रुपये 8 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। यह इजाफा 2021-22 की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। जॉइंट सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ मुल्क के दीगर बिजली कंपनियों से कम है। इजाफे के बावजूद कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को 3 रुपये 98 पैसे फी यूनिट सब्सिडी मिलेगी। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 95वां यौम तासीस GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी थे। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग, तीनों मुसल्लह अफवाज के आला हुकाम ने शिरकत की। चीनी सफ़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक हर मौसम के दोस्त, आहनी भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। पाक चीन मुश्तरका ताउन कमेटी फौजी ताउन के फ़रोग के लिए नया प्लेटफॉर्म साबित होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी दिफा, सलामती और कौम की तामीर में PLA के किरदार की तारीफ। कहा कि दोनों ममालिक के फ़ौजों और अवामी सतह पर मुनफरिद गहरे ताल्लुकात खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। हमारे ताल्लुकात इज्तमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 95वीं यौम तासीस के सिलसिले में तकरीब GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। Chinese ambassador to Pakistan on the occasion of the 95th anniversary of the establishment of PLA, I would like to express my special thanks to General Bajwa to have this event. I wish the military-to-military relationship between China and Pakistan have a brighter future. Jinbad Dosti, Jindabad. वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का ट्वीट लिखते हैं, रेस्क्यू 1112 का दायरा कार मज़ीद बढ़ाने का फैसला किया है। पंजाब की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1112 को तौसी देने की मंजूरी देती है। रवां बरस मज़ीद 86 तहसीलों में एमरजेंसी सर्विस का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का दायरा कार भी मज़ीद 27 अजला तक बढ़ा दिया जाएगा। और मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया, जबकि कराची में मौसम के बायस स्कूल इंतजामिया और वालिदैन कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। कई निजी स्कूल नहीं खुले, जो खुले वो भी बंद हो गए। FI मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की जायदादों की तफसीलात सामने आ गई। इश्तिहारी मुलजिम सुलेमान शहबाज के नाम चिन्योट में 200 कनाल से ज़ायद अराजी है। सुलेमान शहबाज के मुख्तलिफ बैंकों में मजीद क्या अकाउंट्स हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद खान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में FI की जानिब से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है सुलेमान शहबाज की जायदादों के हवाले से, उसमें ये तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई है कि सुलेमान शहबाज के नाम चिन्योट में 200 कनाल से जायद अराजी है, जबकि सुलेमान शहबाज के मुख्तलिफ बैंकों में 29 अकाउंट्स मौजूद हैं। सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स में इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख से जायद की रकम मौजूद है, जबकि सुलेमान शहबाज के नाम 13 कंपनियों में 19 करोड़ से जायद के शेयर भी हैं। स्पेशल जज सेंट्रल ने FI मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को इख्तियारी करार देकर जो है उनकी जायदादों की तमाम तर तफसीलात जमा करने का हुक्म दिया था। जो FI ने अब ये जायदादों की जो तफसीलात है वो जमा करा दी। अब इसके बाद अदालत ने अपने अहकाम जारी करने के आया, वो इन जायदादों को कुर्क करने के अहकाम जारी करते हैं। ये मजीद इस पर प्रोसीडिंग की जाएगी। जी शुक्रिया आबिद खान। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।